ہم سب پاکستانی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دین اور نبی پاک سے ہماری عقیدت ہر شک و شبے سے بالاتر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں ماڈلہ ہائی وے کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، کہا رسول پاک کی شان میں گستاخی پر صدمے میں ہیں۔ ملک میں مظاہرے اور توڑ پھوڑ سے مغرب کو نہیں پاکستان کو فرق پڑتا ہے۔ عالم اسلام کو اکٹھا کر کے اقوام متحدہ میں تحفظ ناموس رسالت کا کیس رکھیں گے۔ مزید کہا سیاسی اور مذہبی جماعتیں اسلام کو غلط استعمال کرتی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں بعض لوگ اسلام آباد کے لیے صرف اسلام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جتنا کام کرتے ہیں اتنا کسی نے نہیں کیا۔ ملک میں ٹانگ کھینچنے والوں کی کمی نہیں، کچھ لوگ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عمران خان ملک دشمنوں کو شکست دیں گے، تھکی ہوئی اپوزیشن کپتان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پنجاب حکومت اور کالعدم ٹی ایل پی میں مذاکرات کا پہلا دور کامیاب، دوسرا آج ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے ویڈیو پیغام کے مطابق مذاکرات کے پہلے دور کی کامیابی کے بعد مظاہرین نے یرغمال بنائے گئے 11 پولیس اہلکار رہا کر دیے۔ مظاہرین مسجد رحمت للعالمین کے اندر چلے گئے، پولیس بھی پیچھے ہٹ گئی۔ مذاکرات کا دوسرا دور بھی آج ہی ہوگا، باقی معاملات بھی طے پا جائیں گے۔ مفتی منیب الرحمان کی اپیل پر ملک گیر پرامن شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال۔ آل پاکستان انجمن تاجران اور دیگر کاروباری تنظیموں کی جانب سے ہڑتال کی حمایت کے بعد کراچی میں تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں اور کاروباری مراکز بند۔ الیکٹرانکس، موبائل، ٹمبر، میڈیسن اور گیان سے وابستہ تمام مارکیٹس میں مکمل شٹر ڈاؤن۔ جوڑیا بازار اور گاڑیوں کے شو روم پر بھی تالے۔ لاہور میں انجمن تاجران کی اپیل پر آج دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ انجمن تاجران کوئٹہ کی جانب سے ہڑتال کی حمایت کی کال۔ مولانا فضل الرحمان بھی ہڑتال کے حامی۔ ادھر کراچی بار میں آج یوم سیاہ۔ مسجد رحمت للعالمین کے باہر دھرنا فی الفور ختم کر دیا جائے۔ سعد رضوی کا شورا ممبرز کے نام پیغام۔ کارکنان پرامن طور پر گھروں کو لوٹ جانے کی ہدایت، کہا شورا ممبران اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں۔ 20 اپریل کی احتجاجی کال کو واپس لیا جائے۔ شورا ممبران کی ضد کی وجہ سے سینکڑوں کارکن اور عوام 6 دنوں سے خوار ہو رہے ہیں۔ ظہیر الحسن شاہ میری ہدایات پر فوری عمل کروائیں۔ کسی کو بھی ریاست کی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ جہاں قانون توڑا جائے گا وہاں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اسلام امن کا دین ہے جس میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی وزارت داخلہ کو آپریشن سے متعلق رپورٹ۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 2 اہلکار شہید جبکہ 719 زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 5600 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ کسی کو ہڑتال اور پرامن احتجاج سے نہیں روکیں گے۔ دیکھنا ہے ہماری وجہ سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں، ہمارے جذبات کسی سے کم نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، بولے صوبوں کو معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا، علم نہیں حکومت کیا آفر کرنے جا رہی ہے۔ تجویز دیتے ہوئے کہا وقتی فائدہ لینے کے لیے کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جو ممکن نہ ہو۔ کورونا کے حوالے سے کہا کہ وفاق کو بین الصوبائی ٹرانسپورٹ ہفتے میں 2 روز بند کرنے کی تجویز تھی جو نہیں مانی گئی۔ وفاق نے کورونا پر کوئی فیصلہ نہ کیا تو سندھ کرے گا۔ 8 والیومز 3 گاڑیاں ریفرنس کی کاپیاں اتارتے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خلاف نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس کی احتساب عدالت اسلام آباد میں سماعت۔ نیب ٹیم ریفرنس کی کاپیاں 3 گاڑیوں میں بھر کر احتساب عدالت اسلام آباد لائی۔ نیب ٹیم کو ریفرنس کی کاپیاں گاڑیوں سے اتارتے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی اتنی کاپیاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ 68 والیومز ایک گاڑی میں کیسے لے کر جائیں؟ ملزمان کے وکلا سوچ
सोच में पड़ गए। पंजाब और केपी में आज से 9वीं ta 12वीं जमात तक क्लासेस बहाल। 1 से 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद रखे जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के मुताबिक इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते से पहले शुरू नहीं होंगे। ओ और ए लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। उधर कोरोना केसेस में इजाफे पर बलोचिस्तान हुकूमत ने 1 ta 8वीं क्लासेस ईद तक बंद कर दी। निजी तालीमी इदारों का अहकामात मानने से इनकार। कोरोना के वार जारी। मुल्क भर में मुहलिक वायरस ने मजीद 73 अफराद की जान ले ली। 24 घंटे में 5152 नए केसेस भी सामने आ गए। मजमूई तौर पर 60,162 टेस्ट किए गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.56% रही। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 82,276 हो गई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में अस्पतालों के 80% से ज्यादा ICU कोरोना मरीजों से भर गए। शुरू होगा। TLP वालों ने 11 यरगमाली पुलिस वालों को छोड़ दिया है। TLP से बातचीत चल पड़ी है और पहला दौर काफ़ी बेहतरी से मुकम्मल हुआ है। सहरी के बाद सुबह दूसरा राउंड होगा। उन्होंने गिरफ्तार जो बंदे यरगमाली बनाए थे पुलिस वाले 11 वो छोड़ दिए हैं और वो ख़ुद भी TLP के लोग मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के अंदर चले गए हैं और पुलिस भी पीछे हट चुकी है और दूसरे राउंड में इंशाअल्लाह ताला बाकी मामलात भी तय पा जाएंगे और ये मुज़ाकरात जो हैं पंजाब गवर्नमेंट ने कामयाबी से किए हैं और जिसमें ये तय पाया है कि उन्होंने पुलिस वाले भी छोड़ दिए हैं और हमारी पुलिस भी पीछे हो गई है और मामलात अल्हम्दुलिल्लाह पहली जो मीटिंग हुई है पंजाब हुकूमत ने की है वो कामयाबी से हमकनार हुई है और अल्लाह से उम्मीद है कि दूसरी मीटिंग भी अभी सहरी के बाद सुबह को बेहतरी की तरफ जाएगी और हालात कमोबेश जो 192 नाकों में से एक नाका रह गया था उसमें भी बेहतरी आ गई है और बातचीत चल पड़ी है। एक राउंड मुकम्मल हो चुका है जो कि मुस्बत रहा है और दूसरा राउंड अब सहरी के बाद सुबह शुरू होगा और अल्लाह से उम्मीद है कि TLP से मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी ने शूरा मेंबर्स के नाम पैगाम में कहा है कि मस्जिद रहमतुल आलमीन के बाहर धरना फिलफौर ख़त्म किया जाए। साद रिजवी ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि कारकुनान पुरअमन तौर पर घरों को वापस लौट जाएं। शूरा मेंबरान अपने आप को कानून के हवाले करें। 20 अप्रैल की एहतजाजी कॉल को वापस लिया जाए। शूरा मेंबरान की जिद की वजह से सैकड़ों कारकुन और अवाम 6 दिनों से ख्वार हो रहे हैं। ज़हीरुल हसन शाह मेरी हिदायत पर फौरी अमल करवाएं। तौहीन रिसालत पर सदमे में हैं। अफसोस है दीनी और सियासी जमातें दीन इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मुजाहरे तोड़ फोड़ करने से मगरिब को नहीं पाकिस्तान को फ़र्क पड़ता है और उन्होंने कहा कि मुल्क में मुजाहरे और तोड़ फोड़ से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। क्या हुकूमत को फ़िक्र नहीं है इस चीज़ की कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो क्या हमें तकलीफ़ नहीं होती? इसको जब इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, हम कोई अपने दीन को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। हम जिस मुल्क में जुर्म होता है उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। हम अपने ये मुल्क में मुजाहरे करके तोड़ फोड़ करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगरब के अंदर मुसलमान मुल्कों को साथ मिला के हेड्स ऑफ स्टेट जो मुसलमान मुल्कों के सरबराह हैं उनको साथ मिला के उनके साथ पर हम पूरी तरह अपना केस प्रेजेंट करेंगे और कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, यूरोपियन यूनियन में। उस तरह उस प्रेशर की वजह से ये जो बार बार हमें तकलीफ़ दी जाती है कि किसी मगरब मुल्क में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की जाती है, हमें यहाँ तकलीफ़ होती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम एक कैंपेन करेंगे सब दुनिया के मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करके हेड्स ऑफ स्टेट को, जो मैंने ख़त भी लिखा है सबको, उससे ये फ़र्क पड़ेगा।
मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान और उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से मुल्क भर में आज पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया। कराची में बाजार और तजारती मराकज़ बंद हैं। शहर की सूरत हाल जानेंगे। मेरे सदर एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ। जी साजिद रऊफ। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से मुल्क भर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिस पर कराची के ताजरों की जानिब से जो है भरपूर उस कॉल की हिमायत की गई थी। और आज कराची में तमाम छोटी बड़ी मार्केट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से मोबाइल मार्केट है, ओल्ड सिटी एरिया में जितनी भी तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स हैं वो बंद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी जो है हमें इंतहाई कम दिखाई दे रही है। आज कारोबारी हफ्ते का आगाज भी है और इस लिहाज से जो है कराची में सुबह से ही जो है वो तमाम मार्केटें और जो है वो खुल जाती हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सुबह से ही चलना शुरू कर देता। हम हड़ताल के बायस जो है आज इस तरह हमें नहीं दिखाई दिया है। मार्केट आज मुकम्मल तौर पर बंद है। बेशतर पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन जो है हमें खुले हुए नजर आए, जबकि चंद ऐसे मकामात भी थे जहाँ पर ये पेट्रोल पंप खुले हुए थे और लोग वहाँ से जो है वो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे थे। चंद मकामात पर हमने पुलिस की और रंजश की भारी नफरी भी देखी कि वो भी जो है इस सूरत हाल के पेश नज़र शहर की अहम सड़कों पर मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ, आपने में तफसीलात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मागला हाईवे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि बाज़ लोग इस्लामाबाद के लिए सिर्फ इस्लाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुल्क में टांग खींचने वालों की कमी नहीं, कुछ लोग मौके की तलाश में रहते हैं। इमरान खान मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगे। नामूस रसालत के लिए आशिक रसूल जो है इमरान खान ने जो काम किया है, हमने पूरी कोशिश की है कि मसले को हल करें, ऐसा हल करें कि ये पाकिस्तान बना ही इस्लाम के लिए है, कि हम इस्लाम और अल्लाह के रसूल का नाम उसके साथ कमिटेड हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसी अमल से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है और अल्लाह ताला ने इस किले की चौकीदारी, इस किले की जिम्मेदारी इमरान खान को दी है।